नमस्कार। यमुना नदी जल परिवहन सेवा के अंतर्गत वजीराबाद बैराज के अपस्ट्रीम में सोनिया विहार से जगतपुरा के शनि मंदिर तक फेरी सेवा आरंभ होने जा रही है और इसी संबंध में आज विभिन्न संबद्ध संस्थाओं के मध्य एक समझौता ज्ञापन के आदान प्रदान के इस कार्यक्रम में मैं रजनी सेन आप सभी का स्वागत करती हूं। यह सेवा न केवल जल परिवहन को बढ़ावा देगी बल्कि पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को संरक्षित करने में भी सहायक होगी। और अब हमारे अतिथिगणों के स्वागत की बेला। माननीय केंद्रीय मंत्री पत्तन, पोत, परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी IWAI के चेयरपर्सन श्री विजय कुमार जी से पुष्पगुच्छ से माननीय मंत्री महोदय का आप स्वागत करें। माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी का स्वागत श्री विजय कुमार जी के कर कमलों से पुष्पगुच्छ से माननीय उपराज्यपाल महोदय का स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी का स्वागत विजय कुमार जी करते हुए हमारे बीच हैं माननीय राज्य मंत्री पत्तन, पोत, परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय श्री शांतनु ठाकुर जी। आपका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। माननीय पर्यटन मंत्री दिल्ली श्री कपिल मिश्रा जी का हम स्वागत करते हैं। बुला रही उपाध्यक्ष IWAI श्री सुनील कुमार जी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन महोदय। माननीय जल संसाधन मंत्री दिल्ली प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, इस कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं श्री सुनील कुमार जी। सचिव पत्तन, पोत व परिवहन मंत्रालय टी रामचंद्रन जी का स्वागत करेंगे सुनील कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत महोदय आपका। दिल्ली के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी का स्वागत कर रहे हैं श्री सुनील कुमार जी। और चेयरपर्सन IWAI श्री विजय कुमार जी का स्वागत करेंगे सुनील कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज से जो समझौता पत्र अस्तित्व में आएगा उसके बाद जो जल परिवहन सेवा आरंभ होगी वह जल परिवहन को बढ़ावा देगी बल्कि पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को भी संरक्षित करने में भी सहायक होगी। अब मैं इस समझौते पर और रोशनी डालने और स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रही हूँ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरपर्सन श्री विजय कुमार जी को। Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarbanand Sonowal ji, Honorable Lieutenant Governor Delhi, Shri Vinay Kumar Saxena ji, Honorable Chief Minister Delhi, Shrimati Rekha Gupta ji, Honorable Minister of State, Shri Shantanu Thakur ji, Honorable Ministers of Delhi Government, Shri Kapil Mishra ji, Shri Pravesh Sahib Singh Verma ji, Shri Dharmender ji, Chief Secretary Delhi, Shri T.K. Ramachandran ji, Secretary Ministry of Ports, Shipping and Waterways, officers from different organizations, my friends from media, and all esteemed guests and dignitaries. Good evening, namaskar. As per the vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and under the guidance of our Honorable Minister, Shri Sonowal ji, the Inland Waterways Authority of India is committed to transforming India's rivers into arteries of economic growth. In the previous decade, several initiatives have been taken to improve the inland water transport sector. The total number of national waterways in the country has increased from 5 in 2016 to 111. Cargo movement on national waterways has witnessed an exponential growth from 18 million tons in 2013 to 133 million tons in 2023, recording a CAGR of 20% plus. Today, the focus is on Yamuna, the largest tributary of River Ganga, which holds immense cultural, religious, and economic importance. It has been declared a National Waterway 110 from Jagatpur in Delhi to the confluence with Ganga at Prayagraj. IWI is already working for development of cargo and passenger transportation in Yamuna, in Mathura, Vrindavan, and Prayagraj. Now, in line with the vision of Honorable Prime Minister, Shri Modi, to revitalize Yamuna River in Delhi,
it is planned to launch waterway-based short-distance recreational boat tourism and ferry services in about 6 kilometer stretch from Sonia Vihar upstream of Wazirabad Barrage to Jagatpur. Accordingly, today an MOU is being signed to establish a framework of cooperation between various agencies of central and Delhi government, such as Inland Waterways Authority of India, DDA, Delhi Jal Board, Delhi Irrigation and Flood Control Department, and Delhi Tourism and Transportation Development Corporation Limited. Under this MOU, IWI will provide infrastructure, namely jetties, onshore facilities, charging stations, technical assistance, hydrological surveys, and navigational marks. DDA will be responsible for providing land for shore facilities, road connectivity, electricity supply, and drinking water. Delhi Jal Board will provide guidelines for permissible activities, monitoring water quality, and manage barrage for availability of navigable depth. Irrigation and Flood Control Department shall undertake maintenance of the embankments and ensure that all safety and emergency procedures are followed by vessel operators. Delhi Tourism shall engage an overseas operator for procurement, operations, and maintenance of non-polluting solar electric hybrid boats. Lot of background work and coordination for the project has already been done under the dynamic leadership of Shri Sonowal ji and Honorable LG Shri Saxena ji. IWI has already carried out detailed hydrographic survey and identified locations for jetty and shore facilities. Work for HDP floating jetties and tenders for development of onshore facilities have also been awarded. Approval of NGT and DPCC has already been obtained. Tourism Department of Delhi government has also issued tender for engaging cruise operator. This is a unique example of collaboration between the central and Delhi government to promote sustainable water-based tourism and transportation options for people of Delhi in a pollution-free manner. To conclude, I extend my gratitude to all the dignitaries and guests who are present here for making this event successful and for being a part of this journey of Yamuna River. Thank you and Jai Hind. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय स्वागत संबोधन के लिए। और अब अपनी बात आपके समक्ष रखने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ सचिव पत्तन पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय श्री टी रामाचंद्रन जी को। बहुत बहुत स्वागत महोदय। नमस्कार। माननीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग केंद्रीय मंत्री जी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री कपिल मिश्रा जी पर्यटन मंत्री, माननीय जल संसाधन मंत्री जी श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, माननीय मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, माननीय रेस्पेक्टेड श्री IWA चेयरमैन श्री विजय कुमार जी और यहाँ उपस्थित सारे अधिकारीगण और भाइयों और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये हम रोज़ जब पूजा पाठ करते हैं तो हमारे यमुना और गंगा जैसे पवित्र नदियों का आवाहन करते हैं। इसलिए इस पवित्र नदी के इस किनारे पर आज जो ये MOU साइनिंग सेरेमनी हो रही है, इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक everyone who has contributed to this effort. Today marks a remarkable milestone as we come together to witness a historic collaboration between the Government of Delhi and the Inland Waterway Authority of India under the Ministry of Port Shipping and Waterways. The signing of this Memorandum of Understanding signifies a pivotal step towards the development and revitalization of the Yamuna River in Delhi. The Inland Waterways has been the pulse of the maritime transport. Recognizing India's vast network of inland waterways and its immense potential, the government has placed a strong emphasis on development of IWT sector through capacity augmentation of several national waterways within our overall economic growth strategy. We now have 29 operational national waterways in India, providing extensive connectivity and facilitating trade across the country. Beyond the economic advantages, the development of national waterways has paved the way for significant growth in the tourism sector, particularly in cruise
and ferry tourism. Every major city, as you are aware, in the world has a waterfront beautifully developed, whether it is London or New York or Singapore. Take any city and the waterfront is beautifully developed and it is a source of recreation for the entire city and for tourists. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and the guidance of our Honorable Minister, the IWAI has been making significant infrastructural advancements to transform waterways into a key driver of economic growth. The authority is actively working on capacity augmentation of national waterways across the country by implementing critical infrastructure development projects. The Yamuna River is one of the most sacred and historically significant rivers and has been underutilized both for transportation and tourism. With this initiative, we are unlocking the potential of the Yamuna by creating a 6-kilometer long waterway stretch from Sonia Vihar to Jagatpur, facilitating recreational boat tourism and ferry services. The MOU signing today is a landmark step towards transforming the Yamuna into a vibrant waterway. I congratulate the IWAI, the Delhi Development Authority, the Delhi Jal Board, the Irrigation and Flood Control Department, the Delhi Tourism and Transportation Development Corporation, and all other stakeholders for their commitment to this project. उनके support के बिना शायद ये project होता ही नहीं. Therefore, I also thank the government of Delhi for their active cooperation in this project. I assure you that all support from IWA side and from the ministry side will be provided, and I hope that within a few months we will have a beautiful, well-developed ferry service operating on this stretch. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, इतनी तफसील से हमें ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। और यमुना कहती है, मैं कान्हा की प्रिय सरिता, मैं प्यासे कंठ का शीतल नीर, जो जलधाराएं सूखी थी अब बदली उनकी तस्वीर। लेकिन ये तस्वीर बदलना इतना आसान नहीं था। कैसे बदली है वो तस्वीर, यही दिखाने के लिए आपके समक्ष आ रही है एक लघु फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म। नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में जलमार्गों के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 कर दी गई है तथा भारत अब जलमार्गों द्वारा 3 पड़ोसी देशों से जुड़ चुका है। जलमार्गों के विकास कार्यों का वार्षिक बजट 182.61 करोड़ से बढ़कर 1086 करोड़ हो गया है। इस अभूतपूर्व विकास के परिणाम स्वरूप जलमार्गों द्वारा पिछले 10 वर्षों में माल ढुलाई में औसतन 22.1% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। 2013-14 में जहां राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए मात्र 18 मिलियन टन माल ढुलाई होती थी, वहीं 2023-24 में ये आंकड़ा 133 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो कि 4.7 बिलियन टन किलोमीटर के बराबर है। माल ढुलाई के साथ साथ नदियों में रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश के रास्ते 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंची। अब इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में यमुना नदी में भी मनोरंजक बोट टूरिज्म और फेरी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है।
जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम स्थल पर गंगा नदी से मिलती है। ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और दिल्ली के लिए जल एवं जीवन का एक प्रमुख स्रोत है। Come forward, let us put our best possible wisdom, skill and ability to explore the available resources in the water without affecting ecology and environment. So this is the vision Honorable Prime Minister has developed. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और माननीय पत्तन पोत परिवहन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के दिशा निर्देश में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण देश की नदियों में जलमार्ग विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी की अगुवाई में दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता व अन्य मंत्रीगण के सहयोग से दिल्ली में यमुना नदी पर जल परिवहन सेवा की शुरुआत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ इस सेवा की शुरुआत मथुरा एवं प्रयागराज में भी की जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली में वजीराबाद बैराज के अपस्ट्रीम में सोनिया विहार से जगतपुर के शनि मंदिर तक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर रिक्रिएशनल बोट टूरिज्म फेरी सेवा प्रारंभ की जा रही है। ये सेवा न केवल जल परिवहन को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को भी संरक्षित करने में सहायक होगी। इस जल सेवा के तहत हाइब्रिड सोलर इलेक्ट्रिक जहाजों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए जेटी, गैंगवे, विश्राम कक्ष, पेयजल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। दिल्ली वासियों और पर्यटकों के लिए ये सेवा एक नए आकर्षण के रूप में सामने आएगी। इस यात्रा के दौरान यात्री यमुना के किनारे स्थित प्रवासी पक्षियों, द्वीपों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। वजीराबाद पुल पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए ये सेवा एक बेहतरीन विकल्प होगी, जिससे लोगों को सुगम, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली पर्यटन विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली सिंचाई विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सहित कई एजेंसियां मिलकर कार्य कर रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित अधिकरण और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस परियोजना को मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में यमुना नदी पर पर्यटन और सैर सपाटे का ये नया अवसर लोगों के लिए एक अनोखी सौगात बनकर आया है। ये सेवा न केवल मनोरंजन का शानदार अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि स्वच्छ और आनंदमय जीवन शैली को भी प्रोत्साहित करेगी। मैं नदी पीर भरी नहीं, अब मैं नदी हूँ आनंद और नीर से भरी। यमुना की इस तस्वीर को बदलने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब जिस पल का हम सभी को इंतज़ार था, जिस क्षण की हम सभी को प्रतीक्षा थी, यानी आज के समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एक्सचेंज के लिए मैं सभी संबद्ध अधिकारियों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। जब एक ऐतिहासिक पल का, एक नए अध्याय का हम सभी गवाह बन रहे हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में सामने है ये समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अस्तित्व में आने के बाद यमुना की तस्वीर बदलेगी। सोनिया विहार से लेकर जगतपुरा तक यमुना के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और इस सुंदर पल का, इस ऐतिहासिक पल का हम सभी साक्ष्य बनते हुए तालियां ऊर्जा से भरी हुई, क्योंकि यमुना अब मुस्कुराएगी और मुस्कुराएंगे वे तमाम लोग जो यमुना से जुड़े हुए हैं। और
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संबोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय राज्य मंत्री पत्तन, पोत, परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय श्री शांतनु ठाकुर जी को। बहुत बहुत अभिनंदन महोदय। नमस्कार सबको, मेरे तरफ से नमस्कार। और आज की इस संध्या में शाम को हमारा जो दिल्ली के यमुना, उसके ऊपर हमारा जो MU साइन आज कंप्लीट हुआ है। हमारे बीच इसी शुभ घड़ी में उपस्थित है केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विनय कुमार सक्सेना जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। हमारे बीच उपस्थित श्रीमती रेखा गुप्ता जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। श्री कपिल मिश्रा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। श्री धर्मेंद्र जी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। श्री TK रामचंद्रन जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज। श्री विजय कुमार जी, चेयरमैन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। और सारे सीनियर्स ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफ दिल्लीज ऑफिशियल्स, मीडिया फ्रेंड्स, सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज का ये शाम एक ऐसा पल है जिस समय का बहुत दिनों से अपेक्षा था। सबसे पहले तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दिल्ली गवर्नमेंट जो MU साइन किए हैं, ये एक ऐतिहासिक पल है। इस पल में हम लोग साक्षी रहेंगे कि जमुना माता का जहाँ टूरिज़्म, जिसका ड्रेजिंग से शुरू करके रोपैक्स, फेरीज, ये सारे सुविधाएं अगर आएंगे तो दिल्ली के जनता और दिल्ली को देखने आने वाले जितने टूरिस्ट जो इस विषय में इंटरेस्टेड है, वो लोगों को बहुत सारे फैसिलिटी मिलेगा। आज हम लोग जहां उपस्थित हुए हैं, हमारे माननीय LG साहब और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, ये सारे विषय ने हम लोगों ने घूम के भी देखा। इतना अच्छा एक वातावरण बने हैं। टूरिज़्म मिनिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा एक पहल और जगह आप लोगों ने बनाए हैं कि पूरे इंडिया से ये जगह देखने आने वाले हैं अगला भविष्य में। और साथ साथ मैं हमारे माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पूरे पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज अथॉरिटी को कि उन्होंने भी हमारे साथ ये अच्छा पल और डट के ये काम आगे जाके करने वाले हैं। हमको अच्छा लग रहा है इस एक महत्वपूर्ण पहल में उपस्थित होते हुए, और आप लोगों का प्रेजेंस आज यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय और जगह निर्वाचित किए हैं। तो इसी के लिए मैं मेरा हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबको मेरे बात को शॉर्ट में यही विराम देता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपके
मार्गदर्शन के लिए। और नदी के तथ्य में बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूंसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी, तेज धार का कर्मठ पानी। नदी अपने साथ आने वाली, अपने सामने आने वाली हर बाधा की चट्टान को ढा देती है। और अब जिस शख्सियत को हम मंच पर बड़े आदर के साथ यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं संबोधन के लिए, उन्होंने भी बाधा की हर चट्टान को ढा कर यहाँ दिल्ली की तस्वीर बदलने के लिए हमें एक नया विश्वास दिया है। बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को। बहुत बहुत आभार महोदया। शानदार, यादगार, इस पूरे चांद के नीचे इस पार्क में बैठ के और ये सुकून महसूस करना अपने आप में एक यादगार पल है। और उस पे आज का ये साइनिंग सेरेमनी जो आने वाला कल कितना सुंदर होने वाला है वो दिखा रहे हैं। ये मेरे लिए भी उतना ही उत्साह भरने वाला है जितना कि दिल्ली की जनता के लिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को, जो लगातार नित नए दिन डबल इंजन की सरकार के लाभ दिल्ली को देती जा रही है। आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री सोनोवाल जी, आदरणीय एलजी महोदय, आदरणीय शांतनु जी, मेरे साथी मंत्रीगण परवेश जी, कपिल मिश्रा जी, हमारे स्थानीय विधायक अभय वर्मा जी, सबको बधाई देती हूँ। ये दिल्ली के लिए, जिसे कहते हैं ना फेदर इन अ कैप, हम पीछे एक बजट का मीटिंग था, उसमें एक योजना बना रहे थे कि दिल्ली का एक कैंपेन होना चाहिए, मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली, सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली, और उसे पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करें ताकि लोग दिल्ली की तरफ आएं, अट्रैक्ट हो। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पर आज इस पार्क को देखकर और उसमें जो ये फेरी का हम प्रावधान कर रहे हैं, ये सच में उस दिल्ली के टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा आयाम होगा, जो दिल्ली वालों के लिए एक उत्साह भी देगा और एक नयापन भी देगा। इससे पहले जो लोग सरकारों में होते थे, उन्होंने बहुत सारे रोड़े अटकाने की कोशिश की, दिल्ली के विकास की गति को थामने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, परंतु दिल्ली ने उन्हें खुद रोक दिया, रोक के साइड कर दिया। और आज दिल्ली जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही है, सुंदरता की ओर, स्वच्छता की ओर, विकास की ओर, समृद्धि की ओर और सुरक्षा की ओर, वो अपने आप में जनता ने जो आशीर्वाद इस चुनाव में दिया, ये उसका फल दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ वो सारी एजेंसीज़ जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है। हमारी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, हमारी डीडीए, हमारा जल बोर्ड, हमारा इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा टूरिज़्म विभाग। यदि डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये संभव नहीं होता। आज डबल इंजन की सरकार है और इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में इस मंच पे बैठ के हम निर्णय ले रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी को कहा कि सर पार्क तो हमारा बहुत अच्छा है, एलजी साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत करी, कुछ हिरन चाहिए हमें यहाँ दौड़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा तुरंत ले लीजिए, असम से दे देंगे। तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस कि आप केवल सोचिए, आप केवल बोलिए, वो काम जिसे असंभव लोग कहते हैं, इस इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल, आई एम पॉसिबल छिपा है, ये हो पा रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत बधाई
सभी अधिकारीगण को, जिन्होंने केवल इस पार्क को डेवलप करना एक अपने आप में, इस मूर्ति को जब मैं देख रही थी, जो रोशनी इस मूर्ति पे पड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। वो अध्याय जिसमें दिल्ली के हर नागरिक के लिए जीने का अधिकार लिखा जा रहा है, उसके लिए स्वच्छ हवा उसे मिले, ये अधिकार उसे दिया जाएगा। एक साफ सुथरे माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में वो रह सके, अपने परिवार को वो क्षण दे सके, वो सारे के सारे काम उस अध्याय के साथ लिखे जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, दिल्ली में लगातार ये जो विकास कार्यों की श्रृंखला है, ये रुकने वाली नहीं है। अभी पीछे एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि बताइए यमुना जी कब तक साफ हो जाएगी, कब तक उसमें क्रूज चलेंगे? तो मैंने एलजी साहब उन्हें कहा कि चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम क्रूज़ पे बैठ के आपको वहाँ इंटरव्यू देंगे। तो मैं आज उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं, बहुत जल्द इस यमुना घाट पे हम लोग उनके साथ वो इंटरव्यू भी करेंगे। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इस यमुना मैया ने आमंत्रित किया है कामाख्या देवी को सोनेवाल जी के रूप में, हमारी काली माँ को कलकत्ता से स्वयं पधारे हमारे शांतनु जी को, हमारी दिल्ली से कालका माई, छतरपुर माई और हमारी झंडे वाला माई के आशीर्वाद, ये सब देवियाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ अवतरित हो गई हैं। ये सब लोग मिलके कह रही हैं कि भी यमुना जी को साफ करने का ये जो काम है, ये अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। रोज़ाना इस पे काम होगा और एक बहुत बड़ी टीम जो इसकी वर्किंग में लगातार लगी हुई है। एक दिन और एक क्षण भी हम छोड़ नहीं रहे कि यमुना जी को साफ करते हुए हम बहुत जल्द दिल्ली की जनता को इस यमुना के किनारे बिठा करके वो भव्य यमुना आरती दिखाएं जो कि दुनिया देखेगी। और एक तरफ बनारस की गंगा आरती और एक तरफ दिल्ली की यमुना आरती, हजारों हजार लोग उस सनातन के हमारे संस्कृति को देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। मैं फिर से बहुत बधाई देती हूँ सभी अधिकारियों को, हमारी केंद्र सरकार को, हमारे एलजी महोदय को और आदरणीय मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में लगातार दिल्ली फ्लोरिश कर रही है, दिल्ली आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया, ऊर्जा से भरे आपके शब्दों के लिए। और आपने मातृशक्ति और प्रकृति की शक्ति का जिक्र किया, लेकिन भी है जो निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। दिल्ली को अव्यवस्थित दिल्ली से सुव्यवस्थित दिल्ली और बंजर दिल्ली से हरित दिल्ली बनाने का श्रेय जिन्हें मिलना ही चाहिए। बड़े आदर और सम्मान के साथ अब मंच पर संबोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय उपराज्यपाल महोदय दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी को। स्वागत महोदय। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा जी, पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी, जल संसाधन मंत्री दिल्ली सरकार श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, मुख्य सचिव दिल्ली श्री धर्मेंद्र जी, सचिव पतन पोत परिवहन श्री टी.के. रामचंद्रन जी, अध्यक्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण श्री विजय कुमार जी, यहाँ पर मौजूद सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों और भाई और बहनों, दिल्ली वासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। वर्षों तक उपेक्षित रही हमारी जीवनदायिनी यमुना आज फिर से अपने गौरव की ओर अग्रसर हो रही है। आज दिल्ली की पहचान यमुना में क्रूज टूरिज्म और फेरी सर्विसेज की शुरुआत के लिए MOU साइन हुआ है। इस दिन और इस पल का दिल्ली को काफ़ी समय से इंतज़ार था। यह केवल एक नई परिवहन सुविधा नहीं है, बल्कि यमुना फ्लड प्लेन रेजुवेनेशन की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप देश भर के जल मार्गों के पुनरुद्धार पर बल दिया जा रहा है।
इसी कड़ी में यमुना को निर्मल और स्वच्छ बनाने, उसकी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने और दिल्ली के पर्यावरण को सुधारने की दिशा में अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आज की यह उपलब्धि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सकारात्मक प्रयासों से संभव हुई है। इस सभी के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे मालूम है कि ये कार्य लगभग 1 साल पहले से चल रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चनें आती रहीं और ये काम नहीं हो पाया। मुझे आज ये कहने में खुशी है कि अब कितने कम समय में सरकार के बनने के तुरंत बाद ही हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। यमुना, जिसे भारत की पौराणिक परंपराओं में विशेष स्थान प्राप्त है, कृष्ण लीला से लेकर प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों तक सदियों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग रही है। वर्षों से केवल एक नाले के रूप में दिल्ली में देखा जा रहा था, लेकिन अब ये सोच बदलेगी। ये पहल न केवल नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, बल्कि इसे जन जन तक जोड़ने का भी प्रयास है। साथियों, यमुना को इनलैंड वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत राष्ट्रीय मार्ग 110 घोषित किया गया है, जिससे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि क्रूज़ टूरिज्म और फेरी सर्विसेज की शुरुआत के साथ हम दिल्ली में एक नए इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी नींव रख रहे हैं। आज यहाँ ये बताना उचित होगा कि आज जो MOU साइन हुआ है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसका कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा 1 साल पहले से किया जा रहा था और मेरे साथ कई मीटिंग्स भी हुई। मैंने दिल्ली सरकार जो उस वक्त थी, उनके अधिकारियों, उनके मंत्रियों, उनके मुख्यमंत्रियों से कई बार इस बारे में चर्चा भी की, लेकिन समहाउ ये संभव नहीं हो सका और बार बार नकारात्मक राजनीतिक सोच के कारण ये प्रोजेक्ट जो इतना इम्पोर्टेंट था दिल्ली के लिए, वो रुका रहा। आपको ये भी याद होगा कि लगभग 2 साल पहले जब यमुना को नेविगेबल बनाने के लिए एक इंडियन नेवी की मोटर बोट को भी मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके नेवी से बुलाया था और यमुना में चलाने की कोशिश की थी। और वो फेरी सर्विस जैसे शुरू हुई, उसके बाद उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने उस सारी सेवाओं को भी बंद करा दिया। खैर, आज मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि अब दिल्ली में निज़ाम बदला है और दिल्ली की जनता ने यमुना के प्रति अपनी भावना पूर्ण रूप से अभिव्यक्त भी करी है। दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण का हाल कैसा है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन यमुना में ज़ीरो एमिशन और नॉन पोल्यूटिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमने सोलर और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड क्रूज बोट्स को चलाने का फैसला किया है। यमुना मैया की स्वच्छता और संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। यह परियोजना जन भागीदारी का एक प्रतीक बनेगी, जिसमें लोकल बिजनेस, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेटीज़ बनाई जा रही हैं, चार्जिंग स्टेशंस को बनाया जाएगा और अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर विकसित की जाएंगी। और जो उसका जो किनारा है जहाँ पर जेटी बनाई जाएगी, उसको DDA बहुत खूबी से उसको बनाएगा, जिससे कि वहाँ आने वाले हर पैसेंजर को जो एक बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा सकें। ये नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम सड़कों पर कंजेशन को कम करने का भी काम करेगा और एक पीसफुल कंफर्टेबल ट्रैवल ऑप्शन का भी एक प्रदान करेगा, जो सिटी के लिए बिल्कुल नया अनुभव होगा। ये पहल तेज़ी से भागती दिल्ली में रिवर ट्रांसपोर्ट और मेट्रो, सड़क तथा अन्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करने की भी एक दिशा में बहुत बड़ा कदम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है
आने वाले समय में इसमें और विस्तार होगा, जिस पर काम चल रहा है। अभी हम छोटी सी क्रूज़ से इसकी शुरुआत करेंगे, बात को उससे बढ़ाया जाएगा और ये कोशिश होगी कि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इसको कितना और बढ़ाया जा सकता है उसे बढ़ाया जाए, जिससे कि दिल्ली के लोगों को एक नई सुविधा प्रदान की जा सके। मैं अंत में दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि यमुना को केवल नदी नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर और माँ के रूप में देखें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी मिलकर अपने जलमार्गों को संरक्षित करें ताकि वे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और समृद्ध बनी रहें तथा प्रकृति और समाज दोनों का उसमें योगदान हो। यमुना के तट पर डीडीए द्वारा आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, इसे असीता कहते हैं, जो यमुना का ही दूसरा नाम है। इसे लगभग 1 साल के अंदर डेवलप किया गया है। यहाँ करीब 20,000 से ज़्यादा पेड़ों को लगाया गया है। ये फ्लड प्लेन आज से 1 साल पहले एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर आना संभव नहीं था, लेकिन उसे क्लीन किया गया और बहुत सुंदर स्टैचूज़ को लगाया गया, वॉकिंग ट्रैक्स को बनाया गया। और ये जो वाटर बॉडीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें लगभग 183 टाइप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव है, जिसके लिए जितने भी बर्ड वॉचर्स हैं यहाँ पर आना उन्होंने शुरू किया है। और अभी कुछ 1 महीने पहले ही जो उन्होंने यहाँ पर सेंसस की, उसमें उनको रिकॉर्ड किया और उसके बाद उन्होंने उसको जो है पब्लिश भी किया है। इसके साथ साथ यमुना फ्लड प्लेन्स पे डीडीए ने एक और खूबसूरत पार्क बनाया है जिसे बांसेरा कहते हैं। वहाँ पर भी मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप वहाँ आएँ। और अभी लास्ट मंथ ही एक नए फ्लड प्लेन को भी डेवलप किया गया है जिसे यमुना वाटिका का नाम दिया गया है। वो लगभग 200 से ज़्यादा एकड़ में मौजूद है और उसको बनाने के पीछे एक जो भावना है वो ये है कि यमुना के फ्लड प्लेन्स क्लीन हो, दिल्ली की जनता को ग्रीन और क्लीन स्पेसेस मिले जहाँ पर वो आएँ, मॉर्निंग वॉक करें, अपने परिवार के साथ आएँ, रेस्टोरेंट्स में बैठें और उसको एंजॉय करें। यहाँ पर इस तरीके की स्पेसेस बहुत कम हैं। वहाँ पर ख़ास तौर से 20-20 एकड़ में फ्लावर फील्ड्स को लगाया गया है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि शायद आप हिंदुस्तान में नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड में हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सभी जगहों को देखें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी इन काम को हम लोगों ने किया है और अब सब कुछ बदल गया है, सारी अड़चनें दूर हो गई हैं और मुझे यकीन है कि हम बहुत तेज़ी से हर उस काम को करेंगे जो पेंडिंग पड़ा हुआ था। यमुना की सफाई के लिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने सुना ही, वो उनका ये सपना है कि यमुना को क्लीन करना है। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यमुना की सफाई के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम यमुना के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सोनोवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब भी मैंने उनसे कोई रिक्वेस्ट की है दिल्ली के लिए, वो हमेशा हाजिर रहें और उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन हाँ, हमारी ही वजह से ये डिले हुआ जिसकी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, मैं आपसे ये वादा करता हूं। और हमें दिल्ली में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वाटरवेज से रिलेटेड सुविधाएं दे सकते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए। और मैं वादा करता हूं कि हम सरकार हमारी जो है वो बहुत पॉजिटिव है, उसके साथ मिलकर ऐसे काम करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपके मार्गदर्शन और जो आह्वान आपने किया है, जो विश्वास हम में जताया है, उस विश्वास पर हम खरे उतरें। और अब बेहद आदर, सम्मान और सविनय अनुरोध के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री पत्तन, पोत, परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन महोदय।
नमस्कार। आज की सभा में उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री प्रवेश साहेब सिंह वर्मा जी, माननीय कपिल मिश्रा जी, दिल्ली प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी, हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के सचिव टी.के. रामाचंद्रन जी और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष विजय कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रदेश सरकार के अधिकारीगण, हमारे केंद्रीय सरकार के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधु, आज इस अवसर पर उपस्थित आप सबको मेरे हृदय से प्रणाम। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम उपस्थित है, ये ऐतिहासिक पल है। तो मैं तो कहूँगा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम मुझे सौंपा गया है, देश के अलग अलग प्रांतों पे बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में रिवर क्रूज, कार्गो वेसल, पैसेंजर वेसल, अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध की गई है। लेकिन दिल्ली की जमुना में आज जो कार्यक्रम रचना की गई है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, देश की हर जनता की स्वाभिमान का प्रतीक है। तो हमें भगवान ने इतना खूबसूरत जमुना नदी उपहार दी है, तो माँ जमुना की गोद पे अगर हम भक्ति भावनाओं से देश के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए अगर कुछ कदम नहीं उठाया, तो सबके मन में स्वाभाविक है दुख रह जाती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा यहाँ जो भी कार्यक्रम हमने रचना की है, जिसके लिए आज भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग वाटरवेज और दिल्ली प्रदेश सरकार के बीच जो समझौता हुई है, इस समझौता की हर बिंदु को हम निष्ठापूर्वक सही समय पर लागू करेंगे और दिल्ली को एक मात्रा पर्यटन क्षेत्र में देने के लिए हम पूरी निष्ठापूर्वक हम उसमें अपने कदम उठाएंगे। तो मैं आज विशेष रूप से ये जो व्यवस्था यहाँ देखी है, सक्सेना जी ने पिछले दिनों में जो कदम उठाए हैं और आज रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री की रूप में अगले दिनों में दिल्ली की जनता के लिए निष्ठापूर्वक वो मेहनत करेंगे, ये मेरा मानना है। और हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है, जो उनकी मार्गदर्शन है, जो आशीर्वाद है, जो हमें मिली है, सबको मिली है, और देश के विकास के लिए आज हर व्यक्ति को शक्ति उपलब्ध हुई है। तो मुझे ये मानना है कि अगले दिनों में हमारी तरफ से प्रदेश सरकार का साथ मिलकर हमारे जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे, उनके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। क्योंकि आजकल के ज़माने में ये जो प्रतियोगिता है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें लोग हमेशा तुलना करते हैं कहाँ क्या व्यवस्था उपलब्ध है। तो इसलिए दिल्ली में हमें इस घाट को विशेष रूप से सजाना होगा और नदी का गहराई को बढ़ाने के लिए हमें ड्रेजिंग का भी व्यवस्था करना होगा। मैं कुछ देर पहले रेखा गुप्ता जी से और सक्सेना जी से ही बात कर रहा था, अगर ड्रेजिंग जरूरत पड़े तो ड्रेजिंग भी हम करने के लिए तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि
one of the best infrastructure facilities for the national and international tourists to pay their visit, and if we could increase the footfall of the visitors, that will create the success story of today's event. And I believe whatever direction we have received from Honorable Prime Minister, in the last 10 years we have seen the exemplary growth in this sector too, whether it is ports, shipping or waterways. In the inland waterways, during the Congress regime, that was limited to only 5 numbers. Since 1986 till 2014, it is limited to only 5 numbers of national waterways. But Honorable Prime Minister's, his vision ultimately created another 106 national waterways, and ultimately given a beautiful opportunity for the different parts of the people to access the cargo transportation, passenger transportation, and also for the development of cruise tourism. So this is the way, creating ample opportunities to earn the livelihood and also creating the ecosystem where the youth can be well motivated and also their confidence can be generated to put their future course of action in the waterways. इसलिए मैं मानता हूँ जलमार्ग में जो शक्ति है वो किसी का पास नहीं है. The mode of transportation is cost effective, environment friendly and seamless and no congestion. कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं है और ये इको फ्रेंडली है. हम चाहते हैं प्रकृति हमेशा सुरक्षित रहे. प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें वाटर सेक्टर में विशेष रूप से ध्यान देना होगा और मैं मानता हूं फ्यूचर के लिए यही हमारा सबसे बड़ा हाईवे बनेगा. देश में हाईवे बनेगा क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जहां जहां जलमार्ग है उसी जलमार्ग में जो शक्ति, संभावना और संपदा बसा हुआ है, इनको हमें विशेष रूप से अध्ययन और अनुसंधान करना होगा ताकि हम इससे लाभ उठा सके, जनता को हम लाभ दे सके, रोजगार दे सके, किसानों का हम उपार्जन 3 गुना बढ़ाने के लिए इसी जलमार्ग के जरिए हम सहयोग कर सके. तो इसलिए मैं मानता हूं आज जो यहाँ कार्यक्रम रचना की गई है, इस कार्यक्रम के जरिए भविष्य में दिल्ली में और बहुत जमुना में हमारी एक्टिविटी बढ़ेगा और ये शुरुआत है. हम शुरुआत अगर निष्ठापूर्वक करें तो निश्चित रूप से अगले दिनों में यमुना एक सबसे आकर्षित पर्यटन केंद्र बिंदु बनेगा. उसी शब्दों का साथ मैं फिर से इस मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी और मंत्री हमारे वर्मा जी, शर्मा जी, मेरे सहयोगी शांतनु जी, हमारे अधिकारी धर्मेंद्र जी, रामचंद्रन जी और विजय कुमार जी, आप सबको धन्यवाद देते हुए उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम देते हुए मैं अपने विराम को वाणी को विराम देता हूँ. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके मार्गदर्शन के लिए. आपके दिशा नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में हम अपने लक्ष्यों को ज़रूर हासिल करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है.